Hello students, welcome back to your grammar session. Now today we will start with our new chapter, that is chapter number 14, prepositions. Now as always, before starting the chapter or before giving any kind of brief information about the chapter, let us see few examples. The ball is under the table. See the first picture, under, okay, and pay attention on the highlighted word. The books are on the table, okay, on. The second picture, the boy is standing near the chair, okay. The third picture, the boy is standing near, okay. My father is sitting in the car, okay. Fourth picture, in the car. The fence is in front of the house. The last picture, that is fifth, the fence is in front of the house, okay. Now the colored words are prepositions, that is under, on, near, in front of, okay. They tell the relation between two nouns, okay, or they tell where the noun is. They help to complete the meaning of the sentence, okay. देखो अभी अगर ये फर्स्ट सेंटेंस है जो the ball is under the table, अगर उसमें से हम लोग ने under निकाल दिया तो क्या होगा? The ball is the table. Is that giving any kind of meaning? No. To give the meaning into a sentence, we have to add any kind of prepositions. But we have to add a suitable preposition, okay. तो पहले पिक्चर देखो कि बॉल कहाँ है, टेबल के नीचे है. तो टेबल के नीचे वाला जो पार्ट है वो हम क्या बोल सकते हैं? द बॉल इज अंडर द टेबल, ओके. द बुक्स आर ऑन मीन्स ऊपर है, ओके. द बॉय इज स्टैंडिंग नियर द चेयर. अभी बॉय कहाँ खड़ा है? चेयर के पास में खड़ा है, ओके. एंड द फादर इज सिटिंग इन द कार. फादर कहाँ बैठे हैं? कार के अंदर, ओके. इन द कार, वी कैन नॉट से ऑन द कार. ऑन द कार मतलब कार के ऊपर, ऐसा नहीं होता है, ओके. द फादर इज सिटिंग इन द कार. नाउ द फेंस इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस. फेंस मीन्स आगे जो ये जाली लगाई है वो वाइट कलर की है, उसे क्या कहते हैं? फेंस. और फेंस कहाँ है? घर के सामने है, इन फ्रंट ऑफ, ओके. सो दिस इज व्हाट preposition is, okay. Now a preposition shows the position of a noun in relation to other words in a sentence, okay. noun का जो relation है वो दूसरे word के साथ कहाँ है, कौन सी position पे है, अगर ये हमें देखना है तो क्या है उसका definition? That is a preposition, okay. Now behind, between, under, along, okay, are some more examples of prepositions. So now there are three types of prepositions: preposition of time, preposition of place, and preposition of direction, okay. Now we will see every three in detail. Now first we will start with preposition of place. The kids are in the car. Again pay attention on the highlighted words more. The kids are in the car. The pot is on the grass. Shweta is standing behind the door. The car is parked in front of my house. Roshan is sitting under the tree. James is standing next to Pathy. Okay, now see, the colored words tells us where the kids, pot, Shweta, Roshan and James are. These words are called prepositions of place, okay. कि कोई भी चीज़ या कोई भी पर्सन जो है वो कौन सी प्लेस पे है. अगर वो सेंटेंस में से हमें ये पता चल रहा है कि कौन सी प्लेस पे है तो वो क्या होगा? preposition ऑफ प्लेस. अभी किड्स है, द किड्स जो है वो कार में है, ओके. तो इन द कार, तो हमें पता चल जाएगा ये सेंटेंस है कि किड्स कहाँ पे है? इन कार के अंदर है, ओके. द पॉट इज ऑन द ग्रास. पॉट तो है, ग्रास है, लेकिन क्या है? पॉट कहाँ पे है? ग्रास के ऊपर, ओके. नाउ श्वेता इज स्टैंडिंग बिहाइंड द डोर. श्वेता खड़ी है, लेकिन कहाँ खड़ी है? डोर के पीछे, ओके, बिहाइंड द डोर. द कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस. कार जो है वो पार्क है, ओके, लेकिन कहाँ पार्क है? इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, ओके, घर के एकदम सामने. नाउ रोशन इज सिटिंग अंडर द ट्री, ओके. रोशन कहाँ बैठा है? ट्री के
अंडर, ओके, ट्री के अंडर. नाउ जेम्स इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू बैथी. ओके, जेम्स कहाँ है, खड़ा कहाँ है, बैथी के एग्जैक्ट कहाँ है, नेक्स्ट टू मीन्स बाजू में. ओके, इज दैट क्लियर? Now there are certain things which you have to keep in mind, okay, which you have to remember. Now let us see what are that. Now prepositions are always placed before a noun or a pronoun. Okay, preposition कब हम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी noun या pronoun के ठीक पहले. Okay, now let us see one by one. Now in is used when we talk about a country, a city or a street. Okay, in जो है वो कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम, अगर हम कोई कंट्री की बात कर रहे हैं, कोई सिटी या फिर कोई स्ट्रीट की बात कर रहे हैं, तो हम उसे इन में यूज़ कर सकते हैं आगे. जैसे एग्जांपल, इन इंडिया, इन मुंबई, इन दिल्ली. ओके, या फिर इन इज ऑल्सो यूज टू शो समथिंग इन इज विद इन अ सर्टेन प्लेस. ओके, मीन्स सर्टेन प्लेस पे जो हम होते हैं. अभी सपोज के इन द बस. ओके, अभी मैं अपने घर पे हूँ तो आई विल से आई एम इन माई हाउस, आई एम इन माई रूम. तो सिमिलरली अगर मैं बस में हूँ तो मैं क्या बोलूँगी, आई एम इन दी बस. सिमिलरली अगर मैं सिनेमा हॉल में हूँ तो मैं क्या बोलूँगी, आई एम इन दी सिनेमा हॉल. ओके, सो दिस इज़ वेरी मच स्पेसिफिक दैट अ सर्टन प्लेस पे अगर हम होते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, इन यूज़ करते हैं. नाउ एट इज़ यूज्ड as a preposition of place when we talk about a specific house, place of residence, building, village or at a specific point or position. Okay, now at हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, अगर हम कोई स्पेसिफिक जगह हो, जैसे स्पेसिफिक कोई बिल्डिंग हो, सपोज हम कहाँ घूमने गए हो तो वहाँ पे स्पेसिफिक बिल्डिंग हो जो बहुत फेमस है, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं आगे एट. ओके, सपोज कोई होटल हो अच्छा सा, ओके, कोई लंच की टेबल हो, तो हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं एट. नाउ सी एग्जाम्पल, एट द प्लेटफॉर्म. ओके, आई एम एट द प्लेटफॉर्म मीन्स कि मैं कहाँ हूँ, प्लेटफॉर्म पे हूँ. नाउ एट लंच टेबल. ओके, आई एम एट द लंच टेबल, सो लंच टेबल पे हूँ. ओके, एक्सेट्रा. यू कैन यूज मैनी मोर एग्जाम्पल्स. ओके, now we will talk about preposition of directions. Okay, the first example is Amar is talking to Karthik. Mango fell from the tree. The earth revolves around the sun. Kamal jumped into the swimming pool. They are running towards the playground. Okay, so the color words tells us the direction in which the action is taking place. Okay, यहाँ पे क्या है कि कुछ हो रहा है, तो कुछ एक्शन हो रही है. ओके, तो वो एक्शन कौन सी डिरेक्शन में जा रही है वो अगर हमें पता चल रहा है तो such words which show the direction of a verb are called the prepositions of direction. Okay, now see again, Amar is talking to Karthik. Okay, अमर कार्तिक के साथ बात कर रहा, टॉकिंग टू. ओके, किसके साथ बात कर रहा है, कार्तिक के साथ, तो टॉकिंग टू. ओके, मैंगो फेल फ्रॉम द ट्री. अभी मैंगो है, गिरा है, कहाँ से गिरा है, ओके, ट्री पे से. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. अभी अर्थ जो है वो रिवॉल्व करता है, लेकिन कैसे, अराउंड मीन्स सन के आजू बाजू. ओके, नाउ कमल जम्प्ड इनटू द स्विमिंग पूल. अभी कमल ने जंप तो किया है, लेकिन कहाँ किया है, इनटू मीन्स अंदर, पूल के अंदर. ओके, एंड दे आर रनिंग टूवर्ड्स द प्लेग्राउंड मीन्स जो दे मीन्स अगर सपोज बच्चे हैं तो बच्चे दौड़ रहे हैं, तो कहाँ, कौन सी पोजीशन में, कौन सी डिरेक्शन में दौड़ रहे हैं, प्लेग्राउंड की तरफ. ओके, तो टूवर्ड्स द प्लेग्राउंड. अंडरस्टूड. नाउ वी विल टॉक अबाउट prepositions of time. Okay, now I will reach at 5 p.m. Okay, he was born in 2007. We are going to Goa on Friday. My birth falls on 27 January. Now see, in the above sentences टाइम इज इंडिकेटेड यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स. ओके, टाइम जो है वो कैसे इंडिकेट किया है, डिफरेंट वर्ड्स के साथ, जैसे एट, इन, ऑन. Okay, now such words that show the time in a sentence are called prepositions of time. Okay, अगर कोई वर्ड हमें टाइम बता रहा है, जैसे I will reach home at 5 p.m. यहाँ पे प्रॉपर है कि 5 p.m. पे मैं घर पे पहुँच जाऊँगा, तो at. Okay, at, in, on is a what? It is a
prepositions, okay, because it shows the time, exact time, year or week, okay. So this is what preposition of time. Understood? Things to be remembered in this, that is very easy. To mention a date or a day we use on, ओके जब भी हम डेट और डे की बात करते हैं तो हम ऑन यूज़ करते हैं. जैसे वी आर गोइंग टू गोवा ऑन फ्राइडे, माई बर्थ फॉल्स ऑन 27 January. ओके नाउ टू मेंशन एग्जैक्ट टाइम इन अ क्लॉक वी यूज़ एट. ओके अगर क्लॉक में हमें टाइम मेंशन करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? एट. आई विल रीच होम एट 5 PM. Okay, now to mention a year we use in. Okay, he was born in 2007. Understood? Thank you.